स्वागत है बच्चों आज के इस लेक्चर में। एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू परफेक्ट टेंस। सो बिफोर स्टार्टिंग परफेक्ट टेंस, let me remind you that I have already teach you that present I have already teach you indefinite, continuous and perfect, and now today I am going to teach you perfect tense, perfect continuous. As you already study about this, that the all tense like indefinite, continuous, perfect, these all are divided into three types. Similar way, the perfect continuous is also divided in three parts like present perfect continuous, past perfect continuous, and third one is future perfect continuous. So as you can see behind me, I have already written here on board to save some time. So let me start today's topic to one by one. Let me first explain here the present perfect continuous. The guys, if we talk about the present perfect definition, then any action that begins at present time, past time, and also continue present time, that is called present continuous. For example, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इस एक्शन से क्या पता चल रहा है बच्चों? तो इस एक्शन से पता ये चल रहा है कि काम पास्ट टाइम में शुरू हुआ है और अभी वर्तमान में भी क्या है, जारी है। अगर बात करें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस वे दैट द एक्शन दैट बिगिंस एट पास्ट टाइम एंड ऑल्सो कंटिन्यू एट पास्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये किसका रहा बच्चों? पास्ट परफेक्ट का. एंड देन द लास्ट फाइनली वी एक्सप्लेन हियर द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. वी कैन से एनी एक्शन that has been happen, that will be happen in future time, and so continue, and so the continuous action, that is called future perfect tense. So this is the definition of three tense. And now we have also how to identify tense through tricky way in Hindi and also in English. So let me show you here guys. I have already written here in English identity and also in Hindi identity. So let me show you first English identity. Any sentence that contains helping verb has or have plus been and ing verb का चौथा रूप and for या since, then we can say that this action is related to present perfect. Similarly, if you talk about the past perfect, then you can see guys, these all are same, but their only helping verb are changed. Like here, if we talk about the English identity but of three, like here, if we talk about the present perfect, here helping verb is has or have been plus ing. And we also watch here in past perfect, helping verb has or have is changed into past had, and been is here also, bing here also, for your since plus time, and also here for your since plus time. And also we talk about the future, here also been plus bing plus for your since plus time. These all are common, these all are in three, these all are present in three. But we have here, look at that, the only helping verb are changed because we talk about the present, past, future, then according to time the helping verb will be changed, but time, for, since, these all are common in three tense. So guys, you can see, you can watch here that for your since is also in this tense and also in. So we can say if any sentence which is related to for, since and time, then we can say this action is this action is perfect continuous. But we can judge here that
because perfect continuous is divided into three types. So how can I identify that the which types of continuous? Present continuous, past continuous, and future continuous. So we have simply identified with the help of helping verb. Here you can see, guys, has a habit means here been VING for your since, VING, been VING for your since time, been VING for your since time. These all are common. If these all are comes, we can simply say this is perfect continuous. But which continuous? Because perfect continuous are divided into three types. If these all are comes with has have, then we can say this action is related to present perfect. But if been VING for your since and time, these all are comes with helping verb have, then we can simply say here this action is past perfect continuous. Similar way here been VING for your since plus time, these are common, but it comes with shall, will, then we can say here this is future perfect tense. For example, we can say I have been playing for 2 hours. बच्चों यहाँ पे क्या है? Have been है. जब ये have आया तो समझ जाना किसका कंटिन्यूअस है? प्रेजेंट परफेक्ट. तो ये किसका? I have been playing for 2 hours, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर बात करें पास्ट की तो I had been playing for 2 hours. बच्चों यहाँ भी been है और टाइम है, for है, लेकिन यहाँ पे had है हेल्पिंग वर्ब. इट मीन्स दैट दिस एक्शन इज related to past perfect continuous. Now the last one is future perfect. Like we can say the simple example, I shall have playing for 2 hours. बच्चों यहाँ पर been भी आ रहा है, behind for भी आ रहा है, time भी आ रहा है, but the helping verb is shall. It means this action is related to future perfect tense. These all identity are in English, but in simply how we understand in Hindi. So then we can simply understand in Hindi any action that ends with रहा है, रही है, रहा है, रही है plus time, that is called present perfect. And in past any action that end with रहा था, रही थी, रहे थे but also attached with time, then we can say this action is related to past perfect. And now the future, we can say in Hindi, we identify in Hindi रहेगा, रहेगी, रहेंगे, but also attached with time plus रहेगा, रहेगी, then we can say this action is related to future perfect. So we can, बच्चों अपनी भाषा में समझते हैं, ये तो अंग्रेज की भाषा थी. हिंदी में क्या है बच्चों? टाइम रहेगा, साथ में रहा है, रही है, रहे, तो समझ जाना ये कौन सा परफेक्ट है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है. जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, जैसे यहाँ बच्चों मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ लगा हुआ और साथ में क्या शो कर रहा है? सुबह, टाइम. इसका मतलब ये हुआ कि दिस एक्शन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नाउ इन पास्ट वी कैन आइडेंटिफाई रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस साथ में क्या है? टाइम. इट मीन्स दिस एक्शन इज रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह से पढ़ता रहूं, सॉरी मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था. बच्चों यहाँ पे क्या है? रहा था है और साथ में क्या शो कर रहा है? टाइम. मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना. एग्जाम्पल, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. इंग्लिश की बात करें बच्चों तो इंग्लिश में क्या आ रहा है? हैड आ रहा है, बीन आ रहा है, VING फॉर या सिंस. जब ये बीन आया, V4 आया और टाइम आया, समझ जाओ परफेक्ट कंटिन्यूअस है. लेकिन किसका परफेक्ट कंटिन्यूअस? तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को देखना. अगर हैड आया तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसी तरह अगर बच्चों फ्यूचर की बात करें तो रहेगा, रहेगी, रहेंगे, साथ में टाइम शो करता है. फॉर एग्जाम्पल नीचे लिख देते हैं, मैं सुबह से पढ़ता रहूंगा, है ना. क्या लगा हुआ बच्चों? रहूंगा. हिंदी में क्या है? बचा रहूंगा, साथ में क्या शो कर रहा है? टाइम. तो इसको ट्रांसलेट करता है, आई
shall have been reading since morning। बच्चों हिंदी में क्या है पहचान इसका, रहूंगा रहूंगी और साथ में क्या कर रहा है टाइम। लेकिन इंग्लिश में बात करें तो क्या आ रहा है शैल और टाइम आ रहा है, सिंस बिन भी आ रहा है, बियॉन्ड भी आ रहा है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एकदम इजी है समझना। बस ये याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में बिन आए, बिन आया, वर्ब का चौथा रूप वी आया, फॉर या सिंस आए और टाइम आए तो समझ जाना ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन किसका परफेक्ट कंटिन्यूअस, चूंकि तीन परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव हो, हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में अगर पहचान करे बच्चों तो हैज और हैव हो, क्या हो, हैज और हैव, और साथ में क्या लगाओ बिन और वी तो समझ जाना हो किसका परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट। उसी तरह पास्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड, और साथ में बिन तो कॉमन है, वी कॉमन है, और फॉर या सिंस भी कॉमन है, टाइम भी क्या है कॉमन। ये सब तो सब में तीनों में है तो समझ जाना हैड अगर आए और ये चीज ये टाइम शो करे तो समझ जाना किसका कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की बात करें बच्चों तो इसमें भी कॉमन है, बिन इसमें भी आएगा, वर्ब का चौथा रूप इसमें भी आएगा, सिंस फॉर या सिंस इसमें भी आएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखना हेल्पिंग वर्ब क्या, अगर हेल्पिंग वर्ब शैल या विल आए तो समझ जाना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये रहा बच्चों आज का लेक्चर। अब बात कर यहाँ पे एक पॉइंट नोट मैंने पहले से लिख लिए हैं कि फॉर या सिंस, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर द फॉर यूजेज ऑफ फॉर। नाउ लेट्स सी गाइस, फॉर इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम and since is used for the period of time and since is used for point of time। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है बच्चों, इसे अपनी भाषा में समझते हैं। पीरियड ऑफ टाइम क्या है बच्चों, जिससे अनिश्चित हो, फिक्स ना हो, उसे क्या कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जिससे फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला मैं दो दिनों से पढ़ रहा हूँ, 3 दिनों से पढ़ रहा हूँ, 4 दिनों से पढ़ रहा हूँ, 5 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो ये फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, फॉर। जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर लगाना, ना कि सिंस। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, मैं 3 दिनों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 डेज, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, 20 दिन हो, इन सभी के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, फॉर। लेकिन यहीं पे अगर शो कर दे मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं तो अब सिंस लगेगा, मैं मंगलवार से पढ़ रहा हूं सिंस लगेगा, मैं शुक्रवार से पढ़ रहा हूं सिंस लगेगा। जैसे मैं सोमवार से इस काम को कर रहा हूं, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस फ्राइडे, है ना। उसी तरह बच्चों अगर मंथ की बात करें कि मैं 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, 4 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, 5 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो इसके लिए बच्चों क्या लगाना है, फॉर। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ, मैं 4 महीना से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। लेकिन इसी को अगर बोले मैं जनवरी से इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं फरवरी से इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं मार्च से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो इन सभी के लिए बच्चों फॉर नहीं लगाना है, क्या लगाना है, सिंस लगाना है। जैसे मैं जनवरी से इंग्लिश सीख रहा हूँ, I have been learning English since January, since लगाना है। उसी तरह अगर साल की बात करें बच्चों, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं, मैं 3 साल से पढ़ रहा हूं, इसके लिए फॉर लगाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर ईयर को शो कर दे कि मैं 2020 से पढ़ रहा हूं तो यहाँ पे सिंस लगेगा, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2020। लेकिन इसी को बोले मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, 5 साल से तो पढ़ रहा है लेकिन कौन सा ईयर से, फिक्स नहीं है, तो इसके लिए फॉर लगेगा। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 सालों से पढ़ रहा हूँ। उसी तरह बच्चों अगर बात करें मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूँ, 3 घंटा से पढ़ रहा हूँ, 4 घंटा से पढ़ रहा हूँ, फिक्स नहीं है, 2 घंटा से पढ़ रहा हूँ, लेकिन कौन सा 2 घंटा, फॉर लगेगा इन सभी के लिए। लेकिन यहीं पे अगर हम बोल दे कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें क्या लगेगा बच्चों, सिंस लगेगा। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर बोले 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, तो फॉर लगेगा। लेकिन यहीं पे अगर दिन शो कर दे सोमवार से, मंगल से, बुध से, तो सिंस लगेगा। अगर महीना की बात करें तो मैं 2 महीना से, 3 महीना से, 4 महीना से, तो फॉर लगेगा। लेकिन यहीं पे अगर महीना का
महीना का नेम शो कर दे, जैसे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो सिंस लगेगा। उसी तरह बच्चों अगर साल की बात करें तो मैं 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से पढ़ रहा हूं तो फॉर लगेगा। लेकिन यहीं पे साल का ईयर शो कर दे कि मैं 2005 से पढ़ रहा हूं, 2006 से पढ़ रहा हूं, 2020 से पढ़ रहा हूं, 2021 से पढ़ रहा हूं, 2016 से पढ़ रहा हूं, तो इसमें क्या लग जाएगा? सिंस लग जाएगा। उसी प्रकार बच्चों अगर सुबह से बोले तो भी सिंस लगाना है, शाम से बोले तो भी सिंस लगाना है, रात से बोले तो भी सिंस लगाना है। दिस ऑल आर definite time, point of time, then we shall use for this time since, but this time so period of time, then we can use for this time for. I think from today lecture, after you complete, after you watching this all lecture, I hope that you guys completely known very well about this tense, and I hope you like this lecture, and I also hope if you like this lecture then subscribe this channel and share this video for your friend, your relative, brother and sister. So that's it for today lecture. Thank you so much for watching.